Good morning everyone. Myself Anupriya, MSc Pediatric Nursing, and today I am here to demonstrate the procedure of nasogastric tube insertion. It is a medical process in which we are inserting a plastic tube from the nose through the throat and down into the stomach. The purposes for inserting the nasogastric tube are for feeding the unconscious and sick child, for taking the gastric aspirate sample for diagnosing the tracheoesophageal fistula condition, and for gastric decompression and gastric aspiration in case of poisoning. So the articles that are required for nasogastric tube insertion are a pair of sterile gloves, stethoscope for checking the correct placement, and normal saline when we are performing gastric lavage, swab sticks for cleaning the nostrils, kidney tray for discarding the waste products, a bowl with the water for checking the correct placement, and a piston for crushing any medications that are given along with the feed, a towel to prevent the swelling of the clothes, and a shoulder roll or a pillow to place the baby in a comfortable position, elevating the head slightly. And appropriate size of Ryle's tube is required, some syringes, and for lubrication lignocaine jelly is required. For fixing, micropore or hypoallergic Dynaplast can be used. A pen light or torch to visualize the patency of the nostrils. So the various sizes of nasogastric tube are: for less than 1 month 6 to 8 French, 1 to 6 month 8 to 10 French, 1 to 3 years 10 to 12 French, 3 to 6 years 12 French, 6 to 8 years 12 to 14 French, and above 8 years 14 to 16 French. Now I am going to demonstrate the procedure for nasogastric tube insertion. इसके लिए सबसे पहले हमें फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है फाइल में कि किस पर्पस से हमें एनजी ट्यूब डालना है. इसके बाद हमें मदर को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है. असेस फॉर द पेटेंसी ऑफ द नोस्ट्रिल्स with the help of torch or pen light. So after assessment, सबसे पहले हमें अपने हाथ धोना है और ग्लव्स पहनना है. अब ग्लव्स पहनने के बाद बच्चे के सर के नीचे हमें पिलो या फिर शोल्डर रोल लगाना है, जिससे कि जो बच्चे का सर है वो थोड़ा सा ऊपर के लिए एलिवेट हो जाएगा, जिसको हम स्निफिंग पोजीशन भी बोलते हैं. If the baby is small, then we have to place the baby in the mother's lap. कंफर्टेबल पोजीशन देने के बाद बच्चे की चेस्ट पे हमें टॉवेल डालनी है टू प्रिवेंट द स्वेलिंग ऑफ द क्लोथ्स. अब हमें नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की लंबाई को मेजर करना है कि कितना हमें इंसर्ट करना है. इसके लिए जो टिप है उसको हमें नोस्ट्रिल पे रखना है, फिर ईयर लोब पे, और ईयर लोब से फिजिफॉइड प्रोसेस या फिजिफिस्टर्नम पे रखना है, और इस जो भी मेजरमेंट है इसको हमें मार्क करना है. Now with the help of assistants, open the sterile packaging of the nasogastric tube and hold the tip of the NG tube. अब हम nasogastric tube को lubricate करेंगे lignocaine jelly से from the tip. ट्यूब इंसर्ट करने से पहले हमें बच्चे को बोलना है कि जब हम ट्यूब डालेंगे तो उसको जैसे हम लार घोटते हैं उस तरीके से करना है, या फिर जैसे पानी पीते हैं तो उसको स्वेलो करने की कोशिश करना है. और जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको हमें 1 से 2 इंच तक ऊपर पकड़ना है, और बच्चे को सर को जेंटली पकड़ते हुए हमें ट्यूब को इंसर्ट करना है. अब हमें ट्यूब को 90 डिग्री एंगल पे पकड़ना है और बच्चे का मुंह खोल के देखना है कि ट्यूब कहीं मुंह में कॉइलिंग तो नहीं हो रही है. इसके बाद बच्चे का हेड हमें थोड़ा फ्लेक्स करके चेस्ट की तरफ करना है और ट्यूब को पूरा इंसर्ट करना है जहां तक हमने मार्क किया था. अब ट्यूब इंसर्ट करने के बाद हम यह चेक करेंगे ट्यूब करेक्ट प्लेस पे है या नहीं. इसके लिए ट्यूब का जो डिस्टल पार्ट है उसको ओपन करके एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें रखेंगे, और अगर एक से ज्यादा अधिक बबल आते हैं तो इसका मतलब है कि ट्यूब हमारी सांस की नली में है. अगर 1-2 बबल आते हैं तो इसका मतलब है ट्यूब स्टोमक में ही है और सही प्लेस पे है. इसके बाद हम ट्यूब को फिक्स करेंगे. दूसरा एक और तरीका है जिससे हम ट्यूब का सही प्लेसमेंट चेक करेंगे. इसके लिए हमें एक सिरिंज से गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेकर देखेंगे, और इस एस्पिरेट का हम पीएच भी चेक कर सकते हैं जो कि नॉर्मली 1 to 4 होता है.
And another method for checking the correct placement is, firstly take the 2 to 3 ml air in the syringe and then place the diaphragm of the stethoscope on the left hypochondriac region obliquely 2 to 3 centimeter away from the false rib, and gush of air will be heard. That signifies the correct placement of the tube. Now I am going to tell you about the gastric gavage. इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करना है, जिसमें हम टाइप एंड अमाउंट ऑफ फीड देखेंगे, और अगर साथ में कोई मेडिकेशन भी देना है तो उसको हमें क्रश करके या फिर सिरप फॉर्म में है तो उसको रेडी करना है। इसके बाद हमें मदर को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और मेजरिंग कप की मदद से फीड को मेजर करेंगे। अब हम बच्चे को फीड देंगे, जिसके लिए हमें एक 50 ml की सिरिंज लेना है और ट्यूब क्लैंप करते हुए सिरिंज को अटैच करेंगे, और जो भी हमने फीड मेजर की है उसको बच्चे को देंगे। एंड देन वी हैव टू कीप द सिरिंज एट आवर आई लेवल एंड द फीड विल एंटर इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी। और अब फीड देने के बाद हमें पानी से ट्यूब को फ्लश करना है, जिससे कि ट्यूब ब्लॉक ना हो, और क्लैंप करते हुए ट्यूब को सिरिंज को डिस्कनेक्ट करना है। नाउ I am going to tell you about the gastric lavage. Gastric lavage, it is a process in which we are aspirating the gastric contents, and the indications for gastric lavage are poisoning, abdominal distension, Hirschsprung disease or any hemorrhage. Gastric lavage परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले 50 ml की सिरिंज या फिर कोई फनल लेना है, उसको हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के डिस्टल एंड पर अटैच करना है। इसके बाद हमें नॉर्मल सलाइन डालना है और 1 मिनट के बाद हमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स एस्पिरेट करना है, और ट्यूब को क्लैंप करते हुए इसको डिस्कनेक्ट करना है और गैस्ट्रिक एस्पिरेट को किडनी ट्रे में डिस्कार्ड करना है। गैस्ट्रिक लैवेज में हम 150 to 200 ml फ्लूइड दे सकते हैं। गैस्ट्रिक लैवेज करने के बाद हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है और पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करना है। इसके बाद हमें आर्टिकल्स रिप्लेस करना है और ग्लव्स रिमूव करना है। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, वॉश हैंड्स एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर।